नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी का यह त्योहार आपके जीवन को आनंद, समृद्धि और खुशियों से रोशन करे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने दीपावली पर दी सबको बधाई। सभी को पक्षपात भूलकर देश हित के काम में साथ देना चाहिए, शिवशरणप्पा वाली ने पटेल जयंती पर कहा। बीपीएल के संस्थापक टीपी गोपालन नामबियार नहीं रहे। प्रहलाद जोशी केंद्र का कानून वक्फ के अनियंत्रित अधिकार पर अंकुश लगाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ कच्छ में मनाई दिवाली, खास अंदाज में आए नजर। बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए ब्रह्मा सिंह तंवर, कहा आपके साथ काम करने का मन बना चुका हूं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने दीपावली के मौके पर सभी को त्योहार की मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह दीप और रोशनी का त्योहार सभी के जीवन में नई रोशनी लाए और सभी के जीवन में मिठास भर दे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और 11वें राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल फाउंडेशन द्वारा भव्य तरीके से किया गया। पटेल के चित्र का अनावरण शहर के वली निलयम से फाउंडेशन के आधिकारिक स्थल तक एक भव्य जुलूस में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत फाउंडेशन की आधिकारिक साइट बरिशाई पार्क श्रीनगर के सामने सर्वे नंबर 69/4D पर पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ की गई। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले फाउंडेशन के अध्यक्ष शिवशरणप्पा वाली पिछले 25 वर्षों से शहर में पटेल जयंती मनाते आ रहे हैं। सभी राजनेताओं और जनता को पक्षपात भूलकर राष्ट्र के काम में जुटना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का हित हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है और पटेल ने 500 से अधिक राज्यों को एकजुट करके अखंड भारत का निर्माण किया। आइए सभी कानूनी समस्याओं को दूर करने के बाद अगले वर्ष के भीतर मूर्ति का निर्माण करें। फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में शिवशरणप्पा वाली ने कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों और स्कूल और कॉलेज के छात्रों को राष्ट्र की एकता की शपथ दिलाई। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನಿಂತು ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಾವ ದೇವರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೈ ಹರಿಯರಿಗವ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಕೈ ಇದ್ದವರು ಕೈ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಾಯಿ ಇದ್ದವರು ವಚನ ನಾನು ಸತ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಆದರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆ, ಅಖಂಡತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ನಾನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಿವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ದೇಶ 25 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು 93ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕ 93 ಅನಿಸ್ತದೇನೋ ಯಾರಿಗೆ ನಾವೇ ಅನಿಸ್ತೇವೆ ಏಜ್ ಆದವರು 93ರ ಯುವಕ 25 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಒಂದೇ ದೇಶದ ಏಕತೆಗಾಗಿ, ಅಖಂಡತೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ, ನಮಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತ, ಕುಡಿಸಿದಂತ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಜಯಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೋರಾಗ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಬಡಿಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣವ್ರು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನು ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನು 12 ಗುಂಟೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋ ಹೊತ್ತಿ 300 ಎಕರೆನೆ ಬೂಡಾ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಭೂಗಳರಿಗೆ ಹೋಗ್ಯದಂತ. ಇದು 12 ಗುಂಟೆ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲ್ ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬೂಡೋದು ಆಸ್ ಎನ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಂಕಣ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾರು ಮೂರ್ತಿ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯಾರು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಡಿಸಿದಂತ ವೀರ ಸೇನಾನಿ, ಆಗಿನ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ ಕೂಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ, ಹಿಂದೂ ಇರ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಇರ್ಲಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಇರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಜಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಭಗವಂತ ಖೋಬಾಜಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಂದಾಳೆ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಬೀದರ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು, ಬಿ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಮಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಲಾದೇವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕುದುರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಂತಾದ್ರೆ ವಂದಿಸಿ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಂದಿರಿ, ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡ ಇದ್ರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಲಿ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಖೋಬಾ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಯಾರು ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೇವಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಧರ್ಮ, ಅಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾ ಭಾವನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ವಾಲಿಯವರು ಸವಿಸ್ತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸುಮಾರು 555 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾವು ಯಾರ್ದು ಜನ್ಮದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ ಜನ್ಮದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ದಾರ್ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ, ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ, ಜನರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅವ್ರ ಜನ್ಮದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ 1947 ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ನಮಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ಈ ಇರೋರೇ ಮೂಗರು ಒಂದು ಇದು ನಮ್ದು ಜನಗಡ, ನಮ್ದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ 150ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಲಿಸಂ ಅನ್ನುವಂತ 2 ಪದಗಳು ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಏಕತೆಗೆ ಸದಾ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಅನೇಕ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ತಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಅಧಿಕಾರ
ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರು, ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರು, ಅವರನ್ನ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪದದಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಬಳಿದು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। नए राशन कार्ड के लिए 6 से 7 हजार रूपए लेने का इल्जाम बसपा कल्याण तालुका पंचायत कार्यालय के मीटिंग हॉल में रखे गए गारंटी स्कीम इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की बैठक में सदस्यों ने नए राशन कार्ड बनाने के लिए एजेंट हजारों रुपए मांग रहे हैं, इस तरीके का इल्जाम लगाते हुए नजर आए। बसपा कल्याण तालुके के लोग नए राशन कार्ड बनाने के लिए तहसील कार्यालय जाते हैं। तहसील कार्यालय के बाहर कुछ एजेंट अपनी दुकान चला रहे हैं और नया राशन कार्ड बनाने के लिए 6,000 से 7,000 की मांग कर रहे हैं। इस तरह की समिति है सदस्यों ने लगाया और महिला एवं बाल विभाग के कार्यकर्ताओं ने भी भाग्य लक्ष्मी का बॉन्ड बनाने के लिए 2,000 की मांग कर रहे हैं। तालुका के आंगनवाड़ियों में बच्चों को मिलने वाले राशन को भी बीच में ही गायब किया जा रहा है। आंगनवाड़ियों तक पूरा राशन नहीं पहुंच रहा है, ऐसा इस सदस्य का कहना है। ऐसी समस्याओं को देखकर सारे अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि गारंटी योजना तालुका अध्यक्ष नीलकंठ राठौड़ और तालुका पंचायत ईओ रमेश उल्फी ने खाद्य अधिकारी और CDPO अधिकारी को आदेश दिया, अगली बैठक तक जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे फौरन रोके, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और चेतावनी देते हुए कहा कि राशन कार्ड में किसी भी एजेंट को शामिल न करें। बसपा कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಕತ್ತೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಜನರು ಜನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಜನ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಅವರು ಜನರ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಬರ್ತಾರ, ಅವ್ರು ವೆಂಚಿಗಿಲ್ಲ. ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೀಗ ನಾವೇನು 5 ಇಲಾಖೆದು ನಾವು ಮೆಂಬರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾವು, ನೀವು 5 ಇಲಾಖೆಯವರೇ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಸಮಯ? 2022-23 का क्लोज देना था। डायरेक्ट जो भी अगर है वो लोगों को 2022 के बाद लोगों को क्लोज देना था। लेकिन ऐसे कई एजेंट हैं 6,000 लेने के बाद क्लोज भी 2024। लेकिन जो अगर जेन्युइन लोग कोई तो मैं तो सर 2022 तक ही और हमारी आपकी बात करें सर कि हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 2024 का ऐसा बोले वही पर्सन 6,000 रुपए देकर एक प्राइवेट एजेंट को वो एक्टिवेट करते हैं।
मैं भी वही बोल रहा हूँ लेकिन एजेंट सर हम प्रूफ देते सर और 6,000 को 8 सर ये गरीब 6,000 दिया तो क्या बहुत सारे मामले हैं सर और एक बात सर ऑफिस में ले रहे वो मालूम नहीं, लेकिन एजेंट बराबर एक एजेंट नहीं सर 10 लोग एजेंट 6,000 100% पैसे लेते और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बीपीएल ग्रुप के संस्थापक टीपी गोपालन नंबियार का गुरुवार को निधन हो गया। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि 94 वर्षीय नंबियार पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे और आज सुबह उनका निधन हो गया। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि सुबह करीब 10:15 पर उनका निधन हो गया। टीपीजी के नाम से लोकप्रिय व भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के ससुर है। कांग्रेस पर वक्फ संपत्तियों के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को घोषणा की कि केंद्र सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा वक्फ कानून को दिए गए अनियंत्रित अधिकार को छीनने के लिए एक नया कानून लाएगी। यहाँ डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में आंदोलनकारी किसानों से चर्चा करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा, पिछली कांग्रेस सरकार ने वक्फ बोर्ड को अनियंत्रित शक्तियां दी जिन पर अदालतों में भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। भाजपा सरकार वक्फ कानूनों में जांच और संतुलन लाने के लिए आवश्यक संशोधन कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण कांग्रेस जनता का समर्थन खो रही है, फिर भी पार्टी सबक लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और जहां मुसलमानों के लिए वक्फ कानून है जबकि किसी अन्य मुस्लिम देश में वक्फ कानून नहीं है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्षी भाजपा नेताओं पर वक्फ भूमि मुद्दे का कथित रूप से राजनीतिकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। विजयपुरा जिले में किसानों को राज्य सरकार द्वारा नोटिस जारी करने के खिलाफ भाजपा के विरोधी प्रदर्शन की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा, वे भाजपा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसका राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। वे एक गैर मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा वक्फ भूमि के बारे में बात कर रही है क्योंकि उनके पास उठाने के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार किसी भी किसान को उसकी जमीन से बेदखल नहीं करेगी और यदि किसी किसान को नोटिस जारी किए गए हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाएगा। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। देश आज धूमधाम से दिवाली का त्योहार मना रहा है। ऐसे में पीएम मोदी हर साल की तरह इस साल भी दिवाली जवानों के संग मनाते नजर आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ में जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों को दिवाली पर्व पर अपने हाथों से मिठाई खिलाई और उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। जानकारी दे दें कि पीएम मोदी पहली बार गुजरात में जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। इससे पहले वह जब गुजरात के सीएम थे तब गुजरात के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी केवाडिया में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद कच्छ पहुंचे हैं। यहाँ पीएम जवानों के साथ समय बिता रहे हैं। पीएम ने इस खास मौके पर जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने जवानों से बातचीत की और उनके हालचाल जाने। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने कच्छ में जवानों के साथ 1 घंटे तक समय बिताए और जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी व उनका मुंह भी मीठा कराया। बीजेपी नेता ब्रह्म सिंह तंवर ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दीपावली के मौके पर उन्होंने बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। ब्रह्म सिंह तंवर 3 बार विधायक और 3 बार सांसद रह चुके हैं। ब्रह्मा सिंह तंवर बीजेपी के टिकट पर 1993, 1998 में महारौली और 2013 में छतरपुर से विधायक रह चुके हैं। ब्रह्मा सिंह तंवर की पहचान बड़े गुज्जर नेता के रूप में है।
छतरपुर से मौजूद आप विधायक करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि छतरपुर विधानसभा से ब्रह्मा सिंह तंवर को आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद ब्रह्मा सिंह तंवर ने कहा, आज पूरा मन बनाकर बीजेपी के साथ संबंध तोड़कर आपके साथ काम करने का मन बना चुका हूँ। अरविंद केजरीवाल के उत्साह और विकास को देखकर इनके साथ जुड़ा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने साथ जोड़ा। पूर्वी लद्दाख के पास सीमा पर सैनिकों की वापसी लगभग पूरी होने वाली है। इसी बीच भारत और चीन ने गुरुवार को दिवाली के अवसर पर वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर कई सीमा बिंदुओं पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। सेना के सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को दिवाली के अवसर पर भारत और चीन के सैनिकों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर कई सीमा बिंदुओं पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। यह पारंपरिक प्रथा पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देवसांग मैदानों में 2 टकराव बिंदुओं पर दोनों देशों द्वारा सैनिकों की वापसी पूरी करने के एक दिन बाद बनाई गई, जिससे चीन भारत संबंधों में नई गर्माहट आई। इस दौरान भारतीय और चीनी सेना के सैनिकों ने दिवाली के अवसर पर चुशुल मोल्दो सीमा बिंदु पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। चीनी PLA ने मिठाई एक्सचेंज के दौरान अपना पारंपरिक चीनी मास्क का मोमेंटो और साथ में मिठाई भारतीय सेना के साथ आदान प्रदान किया। सेना के एक सूत्र ने मीडिया को बताया, दिवाली के अवसर पर LAC पर कई सीमा बिंदुओं पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। बारामती सांसद और NCP SP नेता सुप्रिया सुले ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजीत पवार की पूर्व गृह मंत्री RR पाटिल के खिलाफ की गई टिप्पणी को संवेदनशील करार दिया। उन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों के लिए वह दिवंगत नेता की पत्नी और मां से माफी मांगती है। बारामती से सांसद ने कहा कि उनके चचेरे भाई के बयान से उन्हें दुख पहुंचा है और वह बेचैन हो गई है। सुले ने इस मामले में उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस की भी आलोचना की। NCP SP प्रमुख अजीत पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि उनके करीबी सहयोगी RR पाटिल ने उनके खिलाफ कथित करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में जांच का आदेश देकर उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें वह फाइल दिखाई थी जिसमें जांच का आदेश देने संबंधी पाटिल की टिप्पणी का जिक्र था। पवार ने यह टिप्पणी NCP उम्मीदवार संजय काका पाटिल के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए की। संजय काका पाटिल 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सांगली जिले के तासगांव से दिवंगत RR पाटिल के बेटे रोहित के खिलाफ मैदान में है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को रामगढ़ में एक रैली को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोग जात और भात के नाम पर राजनीतिक पार्टियों का समर्थन न करें और न वोट दें। बता दें कि रामगढ़ में अगले महीने उपचुनाव है। प्रशांत किशोर ने कहा कि राज्य इसी वजह से पिछड़ा हुआ है क्योंकि लोग जात और भात के नाम पर वोट दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार की अनदेखी की है। लालू और नीतीश ने बिहार को 35 सालों तक जात और भात में फंसा कर रखा। किशोर ने कहा कि PM मोदी पिछले 10 साल से 5 किलो मुफ्त राशन के बदले धोखा दे रहे हैं। अगर बेहतर भविष्य चाहिए तो आपको जात और भात के नाम पर वोट देना बंद करना होगा। किशोर ने जनता से ये भी अपील की कि वह बीजेपी को वोट न दे। किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपराधियों के आतंक की जगह बेलगाम नौकरशाही के आतंक ने ले ली है। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। उम्मीदवारों के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों की तुलना कचरे से की थी। अब ट्रंप ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए अपने ही अंदाज में बाइडेन को जवाब दिया है। इस दौरान उन्होंने
मेक अमेरिका ग्रेट के नारे को भी दोहराया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रैली के लिए कचरे का ट्रक ड्राइव करके विस्कॉन्सिन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चमकीली कंस्ट्रक्शन जैकेट पहन रखी थी और ट्रक पर सवार होकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, आपको मेरा कचरा ट्रक कैसा लगा? यह ट्रक कमला और जो बाइडेन के सम्मान में है। ट्रंप ने आगे कहा, जो बाइडेन का बयान वास्तव में अपमानजनक है। दक्षिणी फिलिप्पींस के एक शहर में दो मुस्लिम गुरिल्ला कमांडर और उनके समर्थकों के बीच लंबे समय से जारी भूमि विवाद को लेकर खूनी झड़प हो गई। इस झड़प में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। सैन्य और स्थानीय अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को इस बारे में जानकारी दी। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को मागो इंडानाओ डेल सुर प्रांत में पगालुंगन क्षेत्र के एक गाँव में मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट को दो कमांडरों के बीच झड़प हुई थी। झड़प के बाद सेना, पुलिस और विद्रोही मोर्चे के नेताओं ने बाद में समझौता कर दिया था, लेकिन इसके बाद फिर हिंसक झड़प हुई जिसमें लोगों की मौत हो गई। कमांडरों और उनके समर्थकों के बीच लंबे समय से भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। NSUI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने दीपावली पर दी सबको बधाई। सभी को पक्षपात भूलकर देश हित के काम में साथ देना चाहिए, शिवशरणप्पा वाली ने पटेल जयंती पर कहा। BPL के संस्थापक TP गोपालन नाम्बियार नहीं रहे। प्रहलाद जोशी केंद्र का कानून वक्फ के अनियंत्रित अधिकार पर अंकुश लगाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जवानों के साथ कच्छ में मनाई दिवाली, खास अंदाज में आए नजर। बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए ब्रह्मा सिंह तंवर, कहा, आपके साथ काम करने का मन बना चुका हूं। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।